Very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata from Layal Public School and I'm your social science teacher. So class, in our previous class, we discussed about Panchayati Raj institution. We talked about the Gram Sabha and we talked about a particular village called Hardas village. We talked about that village and some of the problems of Hardas village. Okay. So now the next topic is the Gram Panchayat. The Gram Panchayat meets regularly and one of its main tasks is to implement development programs for all villages that come under it. Okay. So Gram Panchayat जो है रेगुलरली ग्राम पंचायत जो है उनकी मीटिंग्स होती रहती है एंड वन ऑफ द मेन टास्क वन ऑफ द मेन work they have to do is to execute the developmental programs. ठीक है, execute means to implement मतलब कि लागू करवाना, ठीक है, उस काम को करवाना। जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, गवर्नमेंट ने जो भी स्कीम्स निकाली है, जो भी प्रोग्राम्स गवर्नमेंट चला रही है, उनको क्या करना, उनको रेगुलरली अपने विलेज पे, अपने विलेज लेवल पे उनको क्या करना, उन डेवलपमेंट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करवाना, लोगों को अवेयर करवाना कि ये डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये स्कीम है गवर्नमेंट की और हमें अपने गांव को क्या करना है, डेवलप करना है। तो ये मेन टास्क ग्राम पंचायत का होता है। As you have seen, the work of the Gram Panchayat has to be approved by Gram Sabha. In the previous example, we have seen that the Gram Panchayat has made the list of below poverty land, but some people who are the members of the Gram Sabha of the Hardas village, they interfere and they told the panchayat like some of the names are missing. जैसे कि आपका बिलो पॉवर्टी लाइन, दोज हु आर रियली पुअर, उनका नाम इंक्लूड नहीं है और आपको इंक्लूड करना है। तो पंचायत, ग्राम पंचायत का जो भी काम है वो कैसे अप्रूव होता है, ग्राम सभा उसमें इंटरफेयर कर सकती है और जो मेन अप्रूवल है वो ग्राम सभा से ही होती है। इन सम स्टेट्स ग्राम सभा फॉर्म कमिटीज मतलब a group of members make a group of members make for a group of members for the specific purpose. When we make a group for the specific purpose, that is known as committee. Okay, so in some states gram sabhas form committees like construction and development committees, like for construction work and for the development work they made a group, स्पेशली ऐसा ग्रुप बनाएंगे जो उस वर्क में काफी लाइक स्किल्ड होते हैं। ठीक है, जैसे कि हो सकता है इंजीनियर्स हो, ठीक है, हो सकता है कि वो काफी एट विलेज लेवल दे आर सो लिटरेट। ठीक है, ऐसे लोगों को वो क्या करते हैं, कमिटी के मेंबर्स बनाते हैं। दीज कमिटीज इंक्लूड सम मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा एंड सम फ्रॉम द ग्राम पंचायत हु वर्क टुगेदर टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क। कोई भी स्पेसिफिक आपका वर्क है, स्पेसिफिक टास्क है, उसको करने के लिए, उसको कैरी आउट करने के लिए ये कमिटी जो है, ये जो ग्रुप है वो बनाया जाता है। और इस ग्रुप के मेंबर्स कौन कौन होते हैं? सम मेंबर्स आर फ्रॉम ग्राम सभा एंड सम आर फ्रॉम ग्राम पंचायत। ओके, दे मेड द कमिटी एंड फॉर द स्पेसिफिक टास्क उनकी ये कमिटी बनाई जाती है। वो डिसीजंस लेते हैं कि हम कैसे चीजों को प्लान आउट करेंगे और उसके बाद वो उस वर्क को इम्प्लीमेंट करते हैं। So let's see that what the Hardas Gram Panchayat was able to do. So before that, we will talk about some of the work of the Gram Panchayat, what work Gram Panchayat do, and what are the sources of funds, what are the sources of money for the Panchayat. The work of a Gram Panchayat includes the construction and maintenance of water sources, roads, drainage, school buildings, and other common property resources. So the construction and maintenance of water sources, whatever the water sources, either it is a dam or water reservoir, or you can say a lake, whatever it is, hand pumps, whatever it is,
The construction and maintenance of water sources, it is the main duty of Gram Panchayat ki they have to construct and maintain the water sources. They have to construct the roads. This is the main responsibility of the Gram Panchayat कि रोड अगर अच्छी नहीं है या रोड बनी हुई नहीं है तो वो कौन बनवाएगा? रोड्स वो ग्राम पंचायत बनवाएगा. ड्रेनेज मीन्स दिस इज द you can say to drain something, the source through which we can take out the dirty water. ठीक है, जिससे गंदा पानी जाता है, जैसे हिंदी में हम उसे नाली बोलते हैं, तो that is drainage. Okay, the way through which dirty water we can take out the dirty water, that is drainage. School buildings को कंस्ट्रक्ट करवाना, गवर्नमेंट स्कूल बिल्डिंग्स हैं उनको कंस्ट्रक्ट करवाना, ठीक है, या और भी कोई कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज है, लाइक दे हैव टू मेक अ पार्क, ठीक है, पार्क बनाना है, तो ये किसका काम है? या स्ट्रीट लाइट्स लगवानी है, ये किसका काम है? ग्राम पंचायत का काम है. लेवाइंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्स. लेवाइंग का मतलब क्या होता है? टू इम्पोज, मतलब लगाना. लोकल टैक्स मतलब लोकल लेवल पे जो भी जैसे एक विलेज है और उस विलेज में जितने भी ग्राम सभा, जितने भी लोग हैं और जिनकी भी इनकम टैक्सेबल होती है, वी विल टॉक अबाउट द टैक्सेबल इनकम एंड एवरीथिंग इन योर फर्दर क्लासेस. ठीक है, अभी के लिए ये समझ लीजिए जितने भी आपके लोकल टैक्स है, ठीक है, कि कितना टैक्स लगना चाहिए, कितना टैक्स लगाना है, ये किसका काम होता है? ग्राम पंचायत का होता है. Executing government schemes related to generating employment in the village. Whatever the government schemes are there, ठीक है, उनको implement करवाना, चाहे वो employment से related हो, खाली employment से related नहीं, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स है, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट को लेके हो गया, लोन्स को लेके हो गया, ठीक है, फार्मिंग को लेके हो गया. तो जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है तो उन्हें इम्प्लीमेंट करवाना, तो उन्हें एग्जीक्यूट करवाना किसका काम होता है? ग्राम पंचायत का काम होता है. सो these are the work of a gram panchayat, some of the important work of the gram panchayat. And what are the sources? Now the main question arises कि मैम ठीक है ये सारे काम वो कर तो लेंगे, बट वो अपने पैसे थोड़ी ना देंगे, कोई तो सोर्स होगा गवर्नमेंट कि वो पंचायत से क्या सोर्स होगा मनी का. तो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फंड्स? कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन हाउसेस, मार्केट प्लेसेस एक्सेट्रा. ठीक है, हाउस रेंट आर देयर, मार्केट प्लेसेस में जो शॉप्स वगैरह होती है उनके टैक्सेस होते हैं, तो उनके टैक्सेस को कलेक्ट करना. गवर्नमेंट स्कीम फंड्स रिसीव थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द जनपद एंड जिला पंचायत. वी विल टॉक अबाउट जनपद एंड जिला पंचायत लेटर ऑन. अभी ये ध्यान रखिए कि गवर्नमेंट स्कीम्स, जो भी गवर्नमेंट स्कीम है, पर्टिकुलर कोई भी गवर्नमेंट ने सपोज एक यू कैन से कि गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है कि डेवलपमेंट, रोड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, तो उसमें गवर्नमेंट बोल रही है इस पर्टिकुलर विलेज को हम क्या करेंगे? हम फंड देंगे. तो ये जो फंड है, गवर्नमेंट की जो भी पर्टिकुलर स्कीम्स होती है उसके जो वहां से क्या है? फंड रिसीव होता है, मनी रिसीव होता है, ठीक है, और ये हमें जनपद और जिला पंचायत के थ्रू रिसीव होता है. अभी जब हम लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट पढ़ेंगे, लेवल्स ऑफ द पंचायत पढ़ेंगे, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी जनपद और जिला पंचायत क्या है. ठीक है, डोनेशन फॉर कम्युनिटी वर्क एक्सेट्रा. some people also donate for the community work, मतलब सोशल वेलफेयर के लिए, कम्युनिटी वेलफेयर के लिए भी वो बहुत सारे चैरिटी वर्क के लिए भी डोनेशंस देते हैं, मनी देते हैं. तो दीज डोनेशन इज आल्सो अ सोर्स, ठीक है, जिससे कि पंचायत के पास पैसा आता है. Okay, so now I hope this is clear to you all. Now move further. Let's see what the Hardas Gram Panchayat was able to do. Do you remember the options that were suggested to solve the water problem in Gram Sabha of Hardas village? ग्राम सभा, देखिए, हैंडपंप्स के लिए बोला गया था, वाटर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए बोला गया था, ठीक है. वन ऑफ द मेंबर जो महाराष्ट्र गया था, ठीक है, और वहां पे देखा था कि कंजर्विंग वाटर एंड रिचार्जिंग इट, ठीक है, एक वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात हुई थी वहां पे.
तो कुछ मेंबर्स ने कुछ एक दो पर्सन ने उस चीज को सजेस्ट किया था. सो व्हेन द हरदास ग्राम पंचायत हेल्ड अ मीटिंग, दिस पॉइंट वाज ब्रॉट अप अगेन बाय सम ऑफ द मेंबर्स. जब फिर से ये मीटिंग हुई तो ये जो पंच के सामने ये बात लाई गई कि वाटर डेवलपमेंट प्रोग्राम का, वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम था, उसका क्या हुआ. दिस मीटिंग वाज अटेंडेड बाय द सरपंच, वार्ड मेंबर्स एंड द सेक्रेटरी. अब जो ग्राम सभा की मीटिंग होती है वो अलग होती है. आफ्टर दैट सम पंच, जिसे पंच वगैरह होते हैं, ठीक है, सरपंच हो गए, और सेक्रेटरी जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, इनके बीच में भी जो मीटिंग हुई थी उसमें भी ये बात डिस्कस की गई कि ये वाटर डेवलपमेंट, वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसके बारे में डिस्कशन उन्होंने किया था. ग्राम पंचायत मेंबर्स फर्स्ट डिस्कस द सजेशंस to deepen 2 hand pumps and clean 1 well. पहले तो उन्होंने डिस्कस किया कि हम 2 हैंड पंप्स को क्या है लगा देते हैं, और एक जो हमारा गांव का कुआं है, ठीक है, उसे क्लीन कर देते हैं, so that the village would not go without water, कि पानी की कमी नहीं होगी. The sarpanch suggested that since the panchayat had received some money for maintenance of hand pumps, this could be used for completing this work. The members agreed and secretary recorded their decision. Okay. So now the sarpanch, the panchayat president, he suggested that we have received some money for the maintenance of hand pumps, and we can use that money for deepen 2 hand pumps, and for cleaning the well we can use that money. And जो भी मेंबर्स थे दे अग्रीड विद दैट. एंड उसके बाद क्या किया उन्होंने, जो सेक्रेटरी था, जो गवर्नमेंट अपॉइंटेड सेक्रेटरी है, उसने उस डिसीजन को रिकॉर्ड कर दिया था. The members then went on to discussion the options for a long-term solution. Now the solution they came up with, like to deepen 2 hand pumps and clean 1 well, this was the short-term program, okay. But they discussed about the long-term, discussed for the long-term solution. What is the long-term solution for this? So they were sure that the Gram Sabha members would ask questions at the next meeting. Some punch asked whether the watershed program would make a substantial differences to the water level. क्या बहुत ही अच्छा हमारा, मतलब बहुत ज्यादा हमारा डिफरेंस आएगा, बहुत ज्यादा हम इम्प्रूव कर पाएंगे क्या इस watershed program से. A lot of discussion followed. In the end, it was decided that the Gram Panchayat would approach the block development officer and get more information on the scheme. They discussed about it. They discussed so many things about the watershed program, whatever the doubts they had, they discussed about it, and in the end they they decided like they would approach, like they would go to the block development officers. When abhi 3 levels of panchayat mein, I will tell you what block level kya hai, theek hai, zila panchayat kya hai, we will talk about it. तो उन्होंने अभी क्या अग्री किया कि हम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जाएंगे और उसके बारे में और बहुत सारी जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए हम वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है. So now just look at these 2 pictures. ठीक है, watershed management has transformed this barren slope to a green meadow in just 2 years. Watershed development, when they like पहले का जो ये लैंड था, दिस वाज द लैंड जहां पे अब देखो बहुत सारी हमें लेडीज दिख रही है जो पानी लेके जा रही है, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, ठीक है. एंड सेम लैंड जो है आफ्टर 2 years जब वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम किया उसके बाद देखिए एक ग्रेजिंग लैंड बन चुका है. ग्रीन मेडो मीन्स अ ग्रीन फ्लैट लैंड, ठीक है, जो जहां पे हरा मैदान होता है ना, देखो ये हरा मैदान, इसको हम बोलते हैं ग्रीन मेडो, ठीक है. तो देखो 2 years में barren means the land which is not used for cultivation of crops, or you can say the land which is not arable, or the land which is land which cannot produce something, that land is known as barren लैंड और बैरन स्लोप. ओके, तो देखिए ये जो बैरन लैंड है वो कैसे 2 साल में वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम से क्या हो चुकी है, एक मेडो, ग्रीन मेडो
बन चुका है, ठीक है, थोड़ा पानी भी हमें दिख रहा है, और ग्रेजिंग लैंड है, हरियाली होना, मैदान होना, ठीक है, प्लांट्स को लगाना, वो तो अच्छी बात होती है हमारे एनवायरमेंट के लिए, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। तो ये देखिए, ये दो पिक्चर्स, और वन मोर पिक्चर इज देयर, जस्ट लुक एट दिस पिक्चर। दिस इज द पिक्चर ऑफ सरपंच, ठीक है, एक सरपंच की है। Two village punch from Maharashtra who were awarded the Nirmal Gram Puraskar in 2005 for the excellent work done by them in the panchayat. Nirmal Gram Puraskar, ठीक है, this award was announced in the year 2003, and in the year 2005 it was firstly awarded. So Nirmal Gram Puraskar, the main motive of Nirmal Gram Puraskar was 100% cleanliness cleanliness and sanitation in the village level. कि sanitation, ठीक है, जो भी आप sanitation, washrooms बनवाना, bathroom करना, cleanliness रखना, ठीक है, निर्मल ग्राम पुरस्कार उसके लिए दिया गया है कि क्लीनलीनेस के लिए और सैनिटेशन के लिए। तो दो पंचायत जो थे, जो महाराष्ट्र से थे, दो पंच, वहां पे उनको क्या दिया गया है, उनको ये पुरस्कार दिया गया है, निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया है, बिकॉज ऑफ देयर एक्सीलेंट वर्क डन इन देयर पर्टिकुलर पंचायत, ठीक है, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था अपने पंचायत, अपने गांव में, और इस वजह से उनको ये अवार्ड मिला है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें ये अवार्ड दिया था। ओके, सो नाउ our last topic is 3 levels of panchayat. So after reading about what happened in the Gram Sabha and Gram Panchayat in Hardas village, you can understand that the Panchayati Raj system is a process through which people participate in their own government. In Gram Sabha, we talked about Gram Sabha, we talked about Gram Panchayat, like in the meeting of Gram Sabha, Panchayat presented their plan, and after that they listen to the problems of the Gram Sabha, they listen to the problems of the common people living in their village. उसके बाद उनकी जो भी problems हैं उनको discuss किया, जो भी उन्होंने suggestions दिए उनको उन्होंने सुना। After that ग्राम पंचायत में उन्होंने क्या किया, उस ग्राम पंचायत की मीटिंग में जो एक ग्राम पंचायत सरपंच, पंच और जो सेक्रेटरी है, उनकी मीटिंग में क्या किया, उस प्रॉब्लम को डिस्कस किया गया, ठीक है। सो हमने देखा पंचायती राज जो है एक सिस्टम है, इट इज अ प्रोसेस थ्रू व्हिच पीपल पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट। लोग, दिस इज द लेवल वेयर वी डायरेक्टली कनेक्ट टू आवर गवर्नमेंट, ठीक है, पंचायती राज, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, हम डायरेक्टली अपनी गवर्नमेंट से कनेक्ट हो सकते हैं। इन रूरल एरियाज द ग्राम पंचायत इज द फर्स्ट टीयर और लेवल बोल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, जस्ट लुक एट दिस पिरामिड, ठीक है, हमारा जो ये ऐसे चलता है पिरामिड जो है, सपोज दीज आर वे विलेज है, ये स्टेट है और ये सेंट्रल है, ठीक है। तो दिस इज द विलेज लेवल, फर्स्ट टीयर बोला जाता है, पहला लेवल बोला जाता है, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर बोल दीजिए। This is the first tier or first level of democratic government. Democracy is a form of government by the people, to the people and for the people. Okay, it is the government of, for and by the people. So this is the first level of the democratic government. The Panch and the Gram Panchayat are answerable to the Gram Sabha. ठीक है, जो भी ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत है, पंच है, उन्हें ग्राम सभा को आंसर करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा हु इलेक्टेड देम, ठीक है। अभी मुझसे धनंजय ने क्वेश्चन भी पूछा, मैम, कि अगर ग्राम सरपंच ने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया, मतलब कि दैट इज नॉट गुड फॉर द पीपल, और दैट इज नॉट गुड फॉर द पीपल, तो क्या होगा, ग्राम सभा उसे नेक्स्ट इलेक्शन में इलेक्ट ही नहीं करेगी अगर उन्होंने ऐसा कोई काम कर दिया तो, बिकॉज इट इज द पीपल, जो क्या करते हैं, सरपंच को, पंच को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। The idea of people's participation in the पंचायती राज system extends into other levels. देखो, एक तो हमारा हो गया, हमने इस टीयर की बात कर ली, ग्राम पंचायत इज द फर्स्ट टीयर ऑफ
लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसके बाद देखो ये एक जिला, देखो सबसे एक ये है आपकी ग्राम पंचायत। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा ब्लॉक लेवल आता है और उसके बाद हमारा आता है जिला परिषद। ठीक है, ये जिला परिषद है, ये आपका है ब्लॉक लेवल। ये मैं एक पर्टिकुलर यू कैन से कि एक ग्रुप ऑफ विलेजेस की बात कर रही हूँ। ठीक है, और ये आपका है ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत में ही ग्राम सभा भी इंक्लूड होगी। सो द आइडिया ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द पंचायती राज system extends into other levels. One is the block level, which is also called जनपद पंचायत और the पंचायत समिति। ये जो सेकेंड लेवल है इसको हम ब्लॉक लेवल बोलेंगे। ठीक है, इसके ये जो ब्लॉक लेवल है बहुत 4-5 पंचायत को, 4-5 विलेजेस को क्या करती है, देखती है। जनपद पंचायत और द पंचायत समिति। द पंचायत समिति है मेनी ग्राम पंचायत अंडर इट, बहुत सारे ग्राम पंचायत होती है। अबव द पंचायत समिति इज द डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ठीक है, अब पंचायत समिति या ब्लॉक लेवल के ऊपर क्या होती है, जिला परिषद या फिर जिला पंचायत होती है, जो जिसके अंदर 4-5 ब्लॉक्स जो होते हैं आते हैं और वो सारे ब्लॉक्स को देखते हैं। ठीक है, the Zilla Parishad actually makes developmental plans at the district level with the help of Panchayat Samitis. It also regulates the money distribution among all the Gram Panchayat. जितने भी डेवलपमेंटल प्लान्स होते हैं वो कौन बनाते हैं, जिला परिषद बनाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाते हैं। एंड फॉर एग्जांपल बीकानेर इज अ डिस्ट्रिक्ट और बीकानेर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे गांव हैं, तो उन छोटे छोटे गांवों को एक 10 गांव के ग्रुप को एक ब्लॉक को दे दिया, फिर 10 गांव के ग्रुप को एक ब्लॉक को दे दिया, फिर ऐसे करके करके 4 ब्लॉक्स हो गए। सपोज 40 विलेजेस आर देयर एंड 10-10 का ग्रुप्स बना दिया और हर एक ब्लॉक को 10-10 विलेजेस जो है दे दिए कि आपको देखना है कि इस विलेज में सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जिला पंचायत क्या करती है, सारे ब्लॉक्स को देखती है। सो विद द हेल्प ऑफ पंचायत समितिज इट ऑल्सो रेगुलेट्स द मनी। अब जिला परिषद क्या करती है, ब्लॉक लेवल्स पे पंचायत समितिज को जो भी पैसा देना है, फंड्स देने हैं, वो पंचायत समिति को देती है और पंचायत समिति अपने अपने पर्टिकुलर ग्राम पंचायत में वो पैसा क्या करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। Within the guidelines given in the constitution, each state in the country has its own laws with regard to panchayats. The idea is to provide more and more space for people to participate and raise their voices. So the supreme law of our country, the constitution, ठीक है, जो constitution है हमारी कंट्री का, वो बताता है कि हर एक स्टेट का अपना खुद के क्या हो सकते हैं, खुद के लॉज हो सकते हैं और पंचायत से रिलेटेड जो भी है वो हर एक स्टेट अपने लॉज बना सकती है। तो ये अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, महाराष्ट्र अपने अकॉर्डिंग, अपने विलेज, अपने एरिया के अकॉर्डिंग, अपने लैंड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वो बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं, पंचायत के लॉज बनाते हैं। जो मेन आपका आइडिया है इसके पीछे का क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें, पंचायत में या फिर गवर्नमेंट में क्या करें, अपना कंट्रीब्यूशन दे, पार्टिसिपेट करें। अगर ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा, इसी को हम डेमोक्रेसी बोलेंगे। ठीक है, so this is all about this chapter. Go through this chapter and if you face any problem, do let me know. I will clear your doubts in our next class. Okay, go through this chapter, read the chapter very carefully and do ask me your queries in my next class. Thank you so much. Bye bye.